Students, today we will learn chapter 10, light, reflection and refraction. In this chapter we will learn about light and its properties, about reflection, what is an image, mirrors and different types of mirrors, ray diagrams of mirrors and uses of mirrors, and some sign convention and mirror formulas. What is light? Light is a form of energy which enables us to see. So till now you were learning about light, what is light, torch is a light, bulb is a light. But now we will learn in scientific terms. What is a light? Light is a form of energy which enables us to see. What are the properties of light? How can you say that a thing is a light or not? So, light is an electromagnetic wave and it does not require any medium. What do you mean by medium? Medium means air is a medium, vacuum is a medium, water is a medium. So light does not need any medium. It can even move through vacuum. Vacuum means where there is no air. Second point, light tends to travel in a straight line. Always light travels in a straight line. If you switch on a torch and just light it up, what do you see in a dark room? The light is moving in a straight line. It has dual nature and light casts shadows. You know that whenever there is light, if you stand in front of light, your shadow will be there. Now next point is speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8 meter per second. This you have to learn by heart because there are a lot of problems that you have to solve. So you will need this. Speed of light is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Now last point is when light falls on a surface, either two of this process takes place, either reflection takes place or refraction takes place. We will see in detail what these are. What is reflection of light? When light bounces back after striking on a polished surface, that is reflection. Now there are certain laws of reflection. Now can you see the diagram? Here at the base what you see is a plane surface or a polished surface. And perpendicular to that you can see a pink line. These are imaginary line. There is no such line, but it is an imaginary line drawn perpendicular to the surface on which the light will strike. And that is called normal. And you represent it as capital N. Now you can see on the left hand side a ray is coming and striking on the surface. The ray that comes and strikes is called the incident ray. And the angle that it makes with the normal is called angle of incidence. You can see a pink arc on my left hand side, that is the angle of incidence. The angle made by the incident ray with the normal. Now once a ray comes and strikes on a surface, it will reflect back. Okay, that particular ray is called reflected ray. You can see that ray has bounced back. The arrow, you can see the arrow is going out. And that particular angle which the reflected ray makes with the normal is called angle of reflection. Okay. Now there are certain laws for reflection. What are the laws? Angle of incidence is equal to angle of reflection. That means both are equal. Angle of incidence and angle of
reflection. The angle or the arc made with pink color, both should be the same, will be the same. That is the first law of reflection. Second law states the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all should lie in same plane. That means it is a single surface and all these should be in same plane, not anywhere else. So these two are the laws of reflection. Now there are certain terms that you need to learn in this chapter. Image. Till now you have heard about this, but your definition will be different. But for physics, our definition, in science, our definition for image is a point where at least two light rays actually meet or appear to meet. So it is said that if two light rays meet somewhere, then only image is formed. Now images are of two types, real image and virtual image. What is a real image? Real image is formed when light rays actually meet. And for virtual image, they does not actually meet but appears to meet. Real image can be obtained on a screen. That means in movie theater, the image is seen on a screen. So that is a real image. But in virtual image, it cannot be obtained on a screen. Now the third property of real image is inverted. Inverted means upside down. Or left will be right, right will be left. And in virtual image, the image is erect. इमेजेस और इमेजेस के टाइप पढ़ने के बाद अब देखते हैं प्लेन मिरर पर इमेज किस तरह से बनती है. सो इमेज ऑन प्लेन मिरर. सो ये प्लेन मिरर है, ठीक है. इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, मतलब पॉलिश इसमें इस तरफ से की गई है, ठीक है. सो इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, रे ड्रॉ करेंगे मिरर की तरफ. तो ये हमने रे ड्रॉ की मिरर की तरफ, ये मिरर पर स्ट्राइक करेगी और वापस इसी पाथ पर वापस आ जाएगी, ठीक है. ये वापस आ गई इसी पाथ पर और आगे की तरफ इस तरफ निकल जाएगी, ठीक है. इस तरफ से ये रे हमने ड्रॉ की, स्ट्राइक करने के बाद ये वापस इसी पाथ पर आ गई. अब एक और रे ड्रॉ करेंगे फुट, ठीक है. फुट यानी कि मिरर के यहाँ पर इस तरफ में. तो यहाँ से एक ड्रॉ की हमने ये रे, और जितना एंगल ये, ठीक है, ये मान लेंगे नॉर्मल, जितना एंगल ये यहाँ पर बनाएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि कुछ इस तरह से ये आगे निकल जाएगी. ये दो एंगल जो होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है. तो अब आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं. ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का डिस्टेंस तो लगातार बढ़ता जा रहा है. सो ये मीट नहीं करेंगी तो इमेज नहीं बनेगी, ठीक है. सो ये मीट किस तरफ करेंगे, इस साइड तो मीट करेंगी नहीं, तो ये मीट करेंगी इमेज जो मिरर है उसके अपोजिट साइड, बैक साइड में. इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से. ये डॉटेड जो है ये है इमेजिनरी रेज, बिल्कुल इसके अपोजिट, जिस तरफ रे रिफ्लेक्टेड रे जा रही है बिल्कुल इसके अपोजिट साइड. इसी तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके भी बिल्कुल अपोजिट साइड जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे तो आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है. जहां पर भी ये इमेजिनरी रेज एक दूसरे से मीट करेंगी वहां पर हमारी इमेज बनेगी, ठीक है. अब जो इमेज बनी है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, जो इमेज बनी है उसके कैरेक्टर्स, उसके गुण क्या होंगे, या कैरेक्टर्स क्या होगा, it will be virtual and erect. Can see the image is virtual and it is erect. Now it is equal to the object, the same size of the object and behind same distance as the object. How many distance it was from in front of the mirror, the same distance it will be behind the mirror.
and it is laterally inverted. These are the characteristics of this image formed on a plane mirror. Example for the plane mirror in which lateral inversion occurs is ambulance. You might have seen ambulance. The name ambulance is written in inverted on the ambulance because so that you can see in the mirror clearly. So here in this figure you can see a blue line, that is the plane mirror, and towards the right side you can see green board written, right? So the G and B are on left side, but it is on right side, right? And N and D are on right side, which is on left side. So that means the image is inverted. This is called lateral inversion. Now let us learn about spherical mirrors. प्लेन मिरर के बाद अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स जो है इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेयर यानी कि गोलाकार होता है, उसे कहा जाता है स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इन्हें बनाया किस तरह से जाता है, तो इन्हें कट किया जाता है किसी स्फेरिकल बोल से। सो ये है एक स्फेरिकल बोल, ग्लास की है ये, इसे यहां से और यहां से कट कर लिया गया। तो ये कट करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर। और इस स्फेरिकल मिरर के बिल्कुल सेंटर में जो होता है उसे कहा जाता है पोल, और इसे कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इस स्फेयर का जो सेंटर होता है, जिस भी स्फेयर से इसे कट किया गया है मिरर को, उसका सेंटर उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसे कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जिस भी स्फेयर से कट किया गया है उसके सेंटर से बाउंड्री यानी कि P की दूरी उसे कहा जाता है रेडियस। ठीक है, रेडियस, और इसे कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें फोकस, F कैपिटल से इसे डिनोट किया जाता है फोकस को। और जो F होता है वो बिल्कुल C और P का मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल बीच में होता है ये C और F के, और इस जो भी रेज होती हैं इस पॉइंट पर फोकस होती है, इसलिए इसे कहा जाता है फोकस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्मॉल f मींस फोकस लेंथ। जो पॉइंट F फोकस पॉइंट है और पोल है, इसके बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकस लेंथ। ठीक है, फोकस से पोल की लेंथ को कहा जाएगा फोकस लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अपार्चर जो है वो यहां पर इसे डिनोट किया गया है mn से। ठीक है, mn से ही डिनोट किया जाता है इसे। mn यानी कि m और n का बीच की दूरी, यानी कि हम कह सकते हैं अफेक्टिव डायमीटर, इसे कहा जाता है अपार्चर। ठीक है, ये बिल्कुल इनके बीच की दोनों इसके एंड्स, जो भी इसका स्पेयर का लास्ट सिरा है और इस तरफ भी लास्ट एंड जो है, उन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो बनेगा अपार्चर। और अब इसमें लास्ट है एक ऐसी लाइन जो C, F और P से सीधी निकले, इन तीनों पॉइंट्स को टच करके निकले, उसे कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हो गया स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अच्छा, इसमें एक और रह गया है, जो R है और स्मॉल f है, इसमें क्या रिलेशन होता है। सो जो R यानी कि रेडियस जो है वो 2 टाइम्स होता है फोकस लेंथ की। ठीक है, सो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कई जगह किया जाएगा, नोट डाउन कर लें इसे। जो भी ये R है, ठीक है, ये R है, ये इस फोकस का, अगर हम फोकस का 2 टाइम्स कर दें तो ये R के इक्वल हो जाता है। ठीक है, Now spherical mirrors are of 2 types. Before that, what is a spherical mirror? Spherical mirror whose reflecting surfaces is curved. Okay, so there are 2 types of spherical mirrors. One is a convex mirror whose reflecting surface is curved outward. Right? It looks like a C, right? And in concave mirror, the reflecting surface is curved inward. Convex mirrors are also called diverging mirror, and concave mirrors are also called converging mirror. Now let us see the rules to make a ray diagram by a concave mirror. This is a concave mirror and we will see what are the rules. इस तरह से ये होगा, ये रे जो
जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये स्ट्राइक करेगी मिरर पर, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां से जाएगी, फोकस से क्रॉस होके जाएगी। ठीक है, कोई भी रे आए तो सपोज कीजिए इस तरफ से कोई रे आ रही है, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। अब देखते हैं सेकंड, नेक्स्ट पेज पर। सेकंड रूल, ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे जो फोकस के थ्रू मिरर पर इंसिडेंट है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से होगा। सो ये इंसिडेंट रे है फोकस के थ्रू, ये मिरर पर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर ये मिरर से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट है तो एरो लगा देंगे इस तरफ, ये इंसिडेंट इस तरफ आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस के ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है फर्स्ट का। ये फर्स्ट में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से, अब फोकस से इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड रूल, रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी मिरर की तरफ तो उसी पाथ पर वापस चली जाएगी जिस पाथ पर वो आई है, बिल्कुल उसी रास्ते से। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये कुछ इस तरह से होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आई मिरर पर। ठीक है, यहाँ पर स्ट्राइक किया इसने इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, इस तरफ ये आई है, इसी पाथ पर बिल्कुल यहाँ पर स्ट्राइक करके बिल्कुल इसी पाथ पर वो वापस चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी पाथ के ऊपर आके इस तरह से ये वापस चली जाएगी। ठीक है, लास्ट यानी कि फोर्थ रूल, ए रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। अगर कोई रे पोल की तरफ आ रही है, ठीक है, जिस भी एंगल से आ रही है वो उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इक्वल एंगल बनाते हुए। सो ये कुछ इस तरह से होगा, ये रे है, ये पोल की तरफ आई, इसने जितना भी एंगल बनाया, यहाँ पर इसने मिरर पर स्ट्राइक किया, सो जितना भी एंगल बनाया, ठीक है, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतना ही एंगल इस तरफ बनाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस पर एरो लगा देते हैं, इस तरफ से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर ये जा रही है। ठीक है, जितना एंगल ये हुआ उतना ही एंगल ये हो जाएगा, ये एंगल आई, ये एंगल आर। सो एंगल आई और एंगल आर इस पर इक्वल होगा। ठीक है, ये नॉर्मल मान लेंगे इसे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, Now let us learn the ray diagram for images formed by concave mirror. There are 6 cases. The cases will be given and how the ray diagram will be made for the concave mirrors. तो 6 के 6 केसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर हो यानी कि अनंत पर हो तो इमेज कहाँ पर बनेगी। सो रे डायग्राम बनाएंगे, ये कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अनंत यानी कि इन्फिनिटी पर है तो उससे रेज आएंगे इन्फिनिटी से। ठीक है, और वो पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर ये पैरेलल है तो वो सभी कहाँ से क्रॉस करेंगी, तो हमने रूल में पढ़ा था जो पैरेलल रेज होती हैं कनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के, सो वो सभी क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेंगी। ठीक है, फोकस से वो जाएंगी, सो ये सभी जाएंगी फोकस से, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और जहां पर भी दो या दो से ज्यादा रेज मीट करें या एक दूसरे को क्रॉस करें वहीं होती है इमेज। सो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर, क्योंकि ये सभी कहाँ एक दूसरे को मीट कर रही हैं, फोकस पर, तो इमेज भी फोकस पर ही बनेगी। ठीक है, अब जो फोकस पर इमेज बनी है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है पोजीशन। पोजीशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, एफ पर होगी। नेचर क्या होगा, जो भी इमेज बनी है वो किस नेचर की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि रियल रेज ही यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। साइज की बात करें तो साइज जो होगा वो पॉइंट साइज यानी कि बिल्कुल छोटा सा बिंदु आकार का। ठीक है, जैसे ये पॉइंट दिख रहा है आपको, कुछ इसी तरह का इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, सेकंड कंडीशन दी है हमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, सी से पीछे। ठीक है, सी से दूर, सो ये है सी, सी से पीछे की ओर, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई ये। ठीक है, ये जो एरो है यही है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इससे हम दो रे डायग्राम बनाएंगे तो दो रे कम से कम सकते हैं हम सी से कर सकते हैं। ठीक है, यहां से जाएगी सी से
स्ट्राइक करेगी यहाँ पर। सो दोनों रेज जो है स्ट्राइक करेंगी मिरर पर, पैरेलल वाली स्ट्राइक करेगी वो जाएगी फोकस से, और जो सी से आई है वो स्ट्राइक करेगी मिरर पर, और उसी पोजीशन उसी पाथ पर जिस पाथ से ये आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ठीक है, रूल में हम पढ़ चुके हैं। सो ये जहां पर भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहीं पर बनेगी इमेज। सो ये किस पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पर, तो ये इमेज किस तरह से बनेगी, ये बन गई यहाँ पर इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड सी, तो इमेज बनी सी और एफ के बीच में। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यहाँ पर लिखी है। सो पोजीशन कहां पर है, पोजीशन है बिटवीन एफ एंड सी, तो सी और एफ के बीच में बनेगी ये इमेज जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी होगी। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज बनेगी क्योंकि रियल में जो है रेज एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। ठीक है, यहाँ पर ये सीधा है, यहाँ पर ये उल्टी इमेज बन रही है। और इसका साइज क्या होगा, स्मॉल साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा, इमेज का छोटा होगा। थर्ड केस दिया है हमें, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो इमेज कहाँ बनेगी। सो इसके लिए रे डायग्राम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये रही, सी पर बना दिया हमने ऑब्जेक्ट। सो इसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम में एक तो हम पैरेलल बना सकते हैं और एक बना सकते हैं हम फोकस के थ्रू। ठीक है, सो ये आ गई फोकस के थ्रू। अब जो पैरेलल रे है, ठीक है, ये इस तरह से पैरेलल जो है, ये पैरेलल है, वो क्या होगी, फोकस से क्रॉस करेगी, रूल में हमने पढ़ा है। ठीक है, और जो फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सो ये एक दूसरे को जहां पर भी क्रॉस करेंगी वहीं पर बनेगी इमेज, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्रॉस करेंगी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये पैरेलल वाली तो रिफ्लेक्ट होकर आ गई, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, सो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों कहां पर मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर बनेगी इमेज। सो ये पॉइंट कहां पर है, सी पर ही है, सो इमेज बनेगी ऐसे। ठीक है, ये बन गई इमेज। ठीक है, और इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन एट सी, ऑब्जेक्ट जब सी पर होगा तो इमेज की पोजीशन भी सी पर ही होगी। नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज बन रही है यहाँ पर। ठीक है, और इन्वर्टेड यानी कि ये सीधी है तो बिल्कुल इसके अपोजिट उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, थर्ड है साइज। साइज भी कैसा होगा, सेम साइज। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं जितना इसका साइज है लगभग उतना ही इसका साइज आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ में हमें दिया है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो सी और एफ के बीच में होगी। सो ये है सी, ये है एफ, यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट। सो इसके लिए रे डायग्राम बनाते हैं। एक तो हम पैरेलल बना सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के रे इंसिडेंट। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद चली जाएगी फोकस से, और एक हम ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे होगी इसके हेड को टच करती हुई, ऑब्जेक्ट के हेड को टच करती हुई जाएगी मिरर पर, स्ट्राइक करके इसी पाथ पर वापस आ जाएगी, हमने रूल में पढ़ा है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, सो इमेज कहां पर बनेगी, जहां पर भी ये दूसरे को रिफ्लेक्टेड होने के बाद क्रॉस करेंगे। सो ये बनी यहाँ पर इमेज। ठीक है, सो इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पोजीशन बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी और एफ के बीच में है तो वो बनेगी बियॉन्ड सी यानी कि सी के पीछे। ये बिल्कुल पीछे हमने पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी के बियॉन्ड है तो इमेज बनती है सी और एफ के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, बिल्कुल अपोजिट है जो हमने पीछे पढ़ा था उसका। ठीक है, नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड यानी कि ये सीधा होगा तो ये उल्टी इमेज बनेगी। साइज जो होगा वो एनलार्ज्ड यानी कि बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा, इमेज जो है इससे बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस भी कर सकते हो ये छोटा है, इसका ये साइज जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, अब है फिफ्थ में हमें दिया है व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है फोकस पॉइंट पर। ठीक है, सो ये है फोकस पॉइंट, इस पर हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ये बनाया हमने ऑब्जेक्ट, इसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे। एक तो हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और एक ड्रॉ कर सकते हैं हम सी से। सो सी से इसके हेड को टच करती हुई जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ पर वापस चली जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ पर चली गई वापस। और जो पैरेलल थी वो क्या करेगी, पैरेलल जो भी होती है वो फोकस से क्रॉस करती है। ठीक है, ये फोकस से क्रॉस कर रही है। आप नोटिस करेंगे कि ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, सी से गई, यहाँ से
स्ट्राइक करके मिरर पे वापस आ गई, ठीक है, इस तरफ ये चली गई, और इसी तरह से जो पैरेलल थी वो फोकस से क्रॉस करके आई और ये आगे की तरफ चली गई। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये दोनों रेज जो है ये पैरेलल हो गई हैं, ठीक है, एक दूसरे के ना तो दूर जाएंगी ना पास आएंगी, ठीक है, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अगर क्रॉस नहीं करेंगी तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है, इमेज कभी भी बनेगी ही नहीं, या फिर हम कह सकते हैं इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। सो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पर, ठीक है, हमें नहीं पता ये कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या मीट करेंगी, तो हम कह सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत पर। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, इमेज जो भी होगी वो रियल होगी, और जैसा है इसकी पोजीशन इस तरह से है तो वो उसका बिल्कुल उल्टा बनेगी, यानी कि इन्वर्टेड। और साइज जो होगा वो होगा हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। हमने फर्स्ट केस में क्या पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर हो तो वो कहाँ पर बनता है, फोकस पर। तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस पर है, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, ठीक है, और साइज होगा हाईली एनलार्ज्ड, यानी कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट से। सिक्स्थ और लास्ट केस है कनकेव मिरर का, इसमें दिया गया हमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है हमें पोल और फोकस पॉइंट के बीच में। सो बनाते हैं, ये पोल है, ये फोकस पॉइंट है, इसके बीच में पोजीशन है, सो ये बना दिया हमने इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। अब इसका भी रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो रे डायग्राम एक तो हम पैरेलल बना सकते हैं इंसिडेंट रे, और एक हम बना सकते हैं सी से, ठीक है, ये आई सी से इसके हेड को टच करती हुई, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हुई, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, इस तरफ आ रही है, इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रूल में हमने पढ़ा है। और जो पैरेलल है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है, सो ये जाएगी यहाँ फोकस से। और आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों रेज जो है इनकी दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है इस साइड में, सो ये इस साइड में तो कभी मीट नहीं करेंगी। सो मीट किस साइड में करेंगे, जिस साइड में इनकी दूरी, बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यानी कि बियॉन्ड द मिरर। तो हम इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये इमेजिनरी रेज यहाँ पर ये मीट करेंगी, ठीक है, ये एक दूसरे से मीट करेंगी, इसी पोजीशन पर बनेगी इमेज, ठीक है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा देते हैं और ये बनी इमेज यहाँ पर, ठीक है। अब इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पोजीशन बिहाइंड मिरर, पोजीशन क्या होगी, मिरर के पीछे की तरफ, ठीक है, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये असल में इमेज नहीं बनी है, ये क्या है, आभासी, इरेक्ट, और इरेक्ट का मतलब सीधी, ठीक है। सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कनकेव मिरर में, जब पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट होती है इमेज, ठीक है, और सभी 5 केसेस में, शुरू के सभी 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड होती है, सिर्फ इसी केस में वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि ये रियल में तो मीट कर नहीं रही है, ये इमेजिनरी रेज है, इसलिए ये क्या होगी, वर्चुअल, ठीक है। और साइज कैसा होगा, एनलार्ज, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं ये ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज, सो ये कैसा है, बड़ा साइज है ऑब्जेक्ट से, सो एनलार्ज होगा। Now let us see the uses of concave mirror. Concave mirrors are used in torches, searchlight, vehicle headlight to get powerful parallel beam of light. It is also used by dentists to see large images of teeth. It is used for shaving to see larger image, and also used in solar furnace. Now let us see the rules to make ray diagram. It is ray diagram, not diagram. Rules to make ray diagram by a convex mirror. Like we saw earlier in the concave mirror, there were 6 rules. Now for convex mirror, there are 4 rules. Let us see it. Light parallel to the principal axis of convex mirror appear to diverge from the focus point. सो इसमें क्या है, एक पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। सो सबसे पहले ये कन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है और इसके पीछे जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, पैरेलल लाइट रे जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है, वो मिरर पर स्ट्राइक करेगी और ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। सो स्ट्राइक करने के बाद जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी, यानी कि बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है, ये गई इस तरफ, ठीक है, ये इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो जाएगी ये रे,
और डाइवर्ज होने के बाद ये हमें कहाँ कैसा लगेगा कि ये डाइवर्ज फोकस पॉइंट से हो रही है, ठीक है। यानी कि जब अगर कोई पर्सन इसे यहाँ से देखेगा, ठीक है, ये आई है, कोई पर्सन इसे यहाँ से देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो है वो फोकस से आ रही है, ठीक है। यानी कि जब हम जो भी ये रिफ्लेक्टिंग रे है इसके अपोजिट में बिल्कुल इसकी सीधी लाइन में ही हम इसे एक इमेजिनरी रे ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से क्रॉस कर रही है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का सेकंड रूल है, ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे फोकस की तरफ आ रही है कन्वेक्स मिरर के तो वो स्ट्राइक करेगी मिरर पर और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। ये किस तरह से होगा? सो सपोज कीजिए ये रे है जो फोकस की तरफ जा रही है, ये फोकस पे पहुंचने से पहले ही मिरर पर स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। सो ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस की, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। जब आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे इसी के इंसिडेंट की, जब आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो फोकस को क्रॉस करेगी, ठीक है। सो इस तरह की लाइन जो फोकस की तरफ आ रही है वो फोकस पे पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। थर्ड रूल, ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। कोई रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ठीक है, सो कोई रे जो सेंटर कर्वेचर की तरफ आ रही है वो मिरर पर स्ट्राइक करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचने से पहले ही। जैसे ही ये स्ट्राइक करेगी ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी पाथ पर, सेम पाथ पर, जिस पाथ पर आई है उसी पाथ पर ये वापस चली जाएगी, ठीक है। एक इमेजिनरी हम ड्रॉ कर सकते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगी, ठीक है। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस पाथ पे आई है स्ट्राइक करने के बाद उसी पाथ पर वापस चली जाएगी, ठीक है। फोर्थ और लास्ट रूल है कन्वेक्स मिरर का, ए रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल। कोई भी रे इंसिडेंट है पोल पर, यानी कि पोल की तरफ कोई भी रे आ रही है जितने एंगल से वो आ रही है, ठीक है। सपोज कीजिए ये आ रही है, सो ये इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी एंगल आई, ठीक है। और जितने एंगल से ये आई है उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल आर। इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल आई जो है वो इक्वल होगा एंगल आर के, ठीक है। सो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। सो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के रूल्स के बाद अब हम देखते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से इमेजेस किस तरह से फॉर्म्ड होती हैं रे डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। सो इसके टोटल 2 केसेस होते हैं, एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है। सो इसमें ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, रेज आएंगी इन्फिनिटी से, ठीक है, ये रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से और ये मिरर पर स्ट्राइक करेंगी, पैरेलल होंगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी इन्फिनिटी से आएंगी, और उसके बाद स्ट्राइक करेंगी ये सभी मिरर पर, और स्ट्राइक करने के बाद ये मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। सो ये डाइवर्ज हो जाएंगी इस तरह से, दूर दूर चली जाएंगी एक दूसरे से, इसी तरह से ये और इसी तरह से ये, ठीक है। ये डाइवर्ज होने के बाद इस तरफ तो ये कभी मीट करेंगी नहीं क्योंकि इस साइड में तो इनका डिस्टेंस जो है, बीच के डिस्टेंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सो ये मीट करेंगी मिरर के बैक साइड में, ठीक है। सो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे मिरर के बैक साइड में, ठीक है। इस तरह से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये भी यहाँ पर भी और इसी तरह से यहाँ पर भी और इसके लिए भी, ठीक है। हम नोटिस करेंगे कि सभी जो रेज हैं वो कहाँ पर एक दूसरे से मीट कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, फोकस पर, और जहाँ पर भी 2 या 2 से ज्यादा रेज मीट करें या क्रॉस करें एक दूसरे को वहीं बनती है इमेज। सो इमेज कहाँ पर बनेगी, एफ पर, यानी कि मिरर के बैक साइड में, ठीक है। और इमेज की बाकी प्रॉपर्टीज के लिए देखते हैं यहाँ पर। सो इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, एफ पर, यानी कि फोकस पॉइंट पर। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज सीधी बनेगी और वर्चुअल यानी कि आभासी बनेगी। रियल में अगर रेज मीट करती तो ये रियल होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी रेज मीट कर रही है, ठीक है। सो ये होगी वर्चुअल। और थर्ड है इसमें साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा सा साइज होगा इसका, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट जैसा, जैसा ये पॉइंट है इस जैसा साइज होगा, ठीक है।
कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन का सेकंड और लास्ट केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है? पी यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। सो ये है पोल और इन्फिनिटी यानी कि अनंत। सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनके बीच में रख लेते हैं। ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक तो हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये हो गई इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये डाइवर्ज हो जाएगी फोकस से, ठीक है। सो ये हो गई फोकस से डाइवर्ज, फोकस ऐसा लगेगा कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। और एक हम ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। सो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, लेकिन ये मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक इसी पाथ पर, जिस पाथ पर भी गई है इसी पाथ पर ये वापस आ जाएगी, ठीक है। अब इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड, ये इनके बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। सो कम जिस तरफ हो रहा है उस तरफ ये मीट करेंगी और उसी तरफ बनेगी इमेज, ठीक है। सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली की इमेजिनरी रे ड्रॉ करते हैं जो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। और जो फोकस जो पैरेलल है वो किस तरफ जाएगी? इसके अपोजिट जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये जाएगी फोकस पर, ठीक है। सो ये एक दूसरे से कहां पर मीट कर रही हैं? मिरर के बैक साइड में, ठीक है। यहां पर ये मीट कर रही हैं एक दूसरे से, यहीं पर बनेगी इमेज। और इमेज जो बनेगी उसकी पोजीशन, नेचर और साइज क्या होगा? पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ पोल और फोकस के बीच में इसकी पोजीशन होगी, ठीक है। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी, आभासी बनेगी। रियल रेज यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, इमेजिनरी रेज कर रही है। अगर इमेजिनरी रेज कर रहे हैं तो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल और सीधी है ये। सो इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, ठीक है। थर्ड है इसमें साइज, साइज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज होगा इसका, ठीक है। सो स्मॉल साइज की बनेगी इमेज, ठीक है। अब है यूज। Now let us see the uses of convex mirror. As you know, it is used as a rear view mirror in vehicles. Why is it so? Because it always gives erect though diminished image. It has wider field of view. Now second use of convex mirror is used as a blind turn. At blind turns you can see certain big circle thing kept. Those are convex mirror. And last uses is used in shops as security mirrors. पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यानी कि जो भी हम वैल्यूज रखेंगे, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी, ये सब चीजें हमें इस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में समझनी है, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें क्या है, जो भी हमारा मिरर होगा, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ठीक है, उस मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रखेंगे, ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड में, ठीक है। इमेज कहीं पर भी बने, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ठीक है। सेकंड, जो भी हम डिस्टेंसेस मापेंगे वो कहाँ से होगा? पोल से। अगर कोई रे यहाँ से आ रही है तो उसका डिस्टेंस जो है हम पोल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन से, ठीक है। इस लाइन से सभी डिस्टेंसेस मापे जाएंगे, चाहे वो इस साइड में हो चाहे वो इस साइड में हो। थर्ड, कोई भी रे जो है वो लेफ्ट से राइट साइड में जा रही हो, ठीक है। सपोज कीजिए ये रे है लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही हो, एरो से बनाना पड़ता है, एरो से बताना पड़ेगा हमें ये किस साइड से जा रही है, ठीक है। सो ये इस साइड में जा रही है, सो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव रखा जाएगा, यानी कि जो भी इस रे की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में ली जाएगी, ठीक है। अगर कोई रे राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रही है सो उसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये रे है किस तरफ से जा रही है? राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रही है। इसमें एरो किस साइड है? इस साइड है, यानी कि ये इस साइड जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है। सो इसका जो भी वैल्यू होगी या मैग्नीट्यूड होगा वो होगा नेगेटिव में, यानी कि माइनस में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा हमें ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर की ओर रखना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा हम इसके ऊपर की ओर रखेंगे इस तरह से, और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा उसकी जो हाइट हम रखेंगे ऑब्जेक्ट या इमेज, उसकी हाइट जो है वो
पॉजिटिव में होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ कोई इमेज है या ऑब्जेक्ट है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा या उसकी जो वैल्यू होगी वो हम नेगेटिव में रखेंगे। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को हमें रिमाइंड करना है न्यूमेरिकल सोल्व करते समय। ठीक है, साइन कन्वेंशन के बाद अब आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। v जो होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस। u जो है वो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f जो है वो फोकल लेंथ, यानी कि पोल से फोकस पॉइंट की दूरी को कहा जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, सो ये मिरर फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो है वो मिरर वाले इसी फॉर्मूले से सोल्व होंगे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, जो भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, उनका मैग्निफिकेशन। ठीक है, और ये होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट का रेशियो। ठीक है, मैग्निफिकेशन जो है इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। सो हाइट ऑफ इमेज को हम लिखते हैं h' और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखते हैं h। सो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होगा? h' अपॉन में h। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू स्मॉल m इक्वल्स टू -v अपॉन में u, यानी कि मैग्निफिकेशन माइनस में इमेज का डिस्टेंस पोल से अपॉन में u, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये इसके इक्वल भी होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये कंक्लूजन निकल जाएगा, m जो है वो -v/u के भी इक्वल होगा और h' अपॉन में h के भी इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। इन दोनों मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, इनसे हमारे सभी न्यूमेरिकल्स जो है मिरर के वो सभी सोल्व होंगे।